is domestic resource mobilization in this country. So I'll touch that at the end, but let me share with you some of the achievements of the finance division that I represent, more the Ministry of Finance. Caretaker government, as you know, as I mentioned, took proactive measures. Economy, alhamdulillah, is stabilized. Market confidence, as indicated by the PSX and other indicators, is decent. Domestic and global challenges were enormous. As you know, the global commodity prices were very high when we came in. We also had been hit by the floods, so we had to manage the expenditures and implementation of that without tightening the purse at that time. And I can go on and on in terms of the fiscal challenges that we faced. Now, obviously we did a lot of work. उसकी वजह से जो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी थी कि IMF की जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जो was negotiated by the previous government, उसको हमने बग़ैर किसी नॉइस के उसको डिलीवर किया है. And then we were able to bring in 700 million, but this was of course in January 2024. We were hoping it will come earlier, but उनके processes and procedures की वजह से थोड़ी देर हो गई इसमें. I can tell you that we also, because this was getting delayed, we have worked incredibly hard कि हम World Bank, Asian Development Bank, Asia Infrastructure Bank, उनके जितने भी quick dispersing assistance थे उनको हमने fast track किया. We made sure that we had adequate representation on the board of these multilaterals to be able to get the release in time. नहीं ये आप बाहर जाके बात करें. So we got, fortunately, because of that work, थोड़ा सा IMF delay भी हुआ, तो we got 1.6 billion in December itself. And if you had been in Ministry of Finance, you would have appreciated कि कितना मुश्किल था, क्योंकि हमने उसको de-link करवा दिया IMF के प्रोग्राम से, जो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में. The government also successfully curtailed the fiscal deficit at 1.3% of GDP during July-November 2024 in the presence of significant rise in markup expenditures. और markup का तो आपको पता है, it hits you and it hits us. ये interest rate जो high हैं, ये actually macroeconomic management में help करते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इसने government कि जो डेट है, डोमेस्टिक डेट को भी बहुत इंक्रीज़ कर दिया. न सिर्फ आपकी बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं, बट इट्स आल्सो इम्पैक्टिंग द डेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ मार्जिनल बेसिस. इस वक्त जो हम बोरो कर रहे हैं, वो बेसिकली बोरो कर रहे हैं टू पे आवर लाइबिलिटीज़. इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन द रियल डेट इज़ लिमिटेड, आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट. On external front, हमारा current account deficit during July-December fiscal year 2024 has been narrowed down by 71.1% to 831 million, against a deficit of 3.6 billion during the same period last year. This improvement is attributed, of course, to the 35.2% decline in trade deficit. इसकी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ काफ़ी हुई है. आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, और क्योंकि आपको LCs खोलने में मुश्किल आ रही थी, बट हमने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंक को टू रिलैक्स द ओपनिंग अप ऑफ द LCs. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, एंड दे रियली हैव टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हम लेकर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बट डे टू डे मैनेजमेंट वो करते हैं, तो हमारी उनसे काफ़ी क्लोजली बातचीत होती है. आपको एक खबर पता तो चल गई होगी, बट लेट मी
mention कि we 2016 में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ था और इसका बिल 2022 में इनैक्ट हो गया था इन अक्टूबर 2022. The bank was formally launched. Its operations started on December 21, 2023. It was my first priority. हम इसको पहले महीने में कर लेते लेकिन we were not allowed to appoint the board members under the caretaker government, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत अभी हमें दिक्कतें आ रही हैं to improve the corporate governance of this country. We were able to release to them rupees 3.87 billion by the finance division to Exim Bank. और आपको शायद पता हो कि ये जो एक्सिम बैंक है इसको हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस के ऑपरेशंस की भी जिम्मेदारी डाली है. सो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक देयर हैज़ बीन अ ट्रांसफ़र ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, बट ये फेज्ड हुई हैं ओवर द पीरियड, ये और भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी. Now, this bank will go a long way in catalyzing the growth and diversification of countries' exports, and underlying it will help the diversification of the industry. एक और चीज़ जो हमने की है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी लिमिटेड को लॉन्च किया है very recently. This has been achieved through the grant capital of approximately 6 billion provided by United Kingdom FCDO. ये कंपनी guarantees provide करेगी for the SMEs largely, and it will be able to leverage the additional capital of a substantive amount close to about 50 billion Pak rupees. So आप इसकी leveraging capability देखें, 6 billion की इन्वेस्टमेंट से हम इसको 50 बिलियन की लेवरेजिंग करेंगे टू मीट द डिमांड्स ऑफ द एसएमईज. ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, इसके कस्टोडियंस आर फाइनेंस डिवीजन. दिस विल बी द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड क्रेडिट गारंटी कंपनी फॉर एसएमईज. आपको पता होगा कि देयर इज़ अनदर नेशनल क्रेडिट एनहांसमेंट मैकेनिज्म इंफ्राजामिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और इन दोनों के लिए आई एम थैंकफुल टू ए कंपनी कॉल करंदाज जो इस्लामाबाद बेस्ड है, बिकॉज उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज करने में और फाइनेंसिंग और ऑपरेशनलाइज करने में, तो ये कुछ इनोवेटिव मैकेनिज़म्स हैं. ये नॉन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये टिपिकल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, बट ये बैंक्स को इनकरेज करेंगी कि वो इन अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर सर्विस सेक्टर्स को प्रोवाइड करें. और मैं आपको बताऊं पूरे एशिया में इस किस्म की एंटिटीज़ हैं. सिर्फ ये है कि हमने कभी हुकूमत के बाहर निकल के नहीं देखा कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. हम आप सबको ये इनवाइट करते हैं कि आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस भूल जाएं गवर्नमेंट की सब्सिडीज़. दोज आर द टाइम्स ऑफ द पास्ट जो इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज सब्सिडीज़ के बेसिस पे चली हैं वो चल नहीं पाएंगी. उनको अपने खुद टांगों पे खड़ा होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बैसाखियों पे चलना, रन करना मुश्किल होता है. आप स्लोली तो चलते हैं लेकिन कभी कोलैप्स भी हो जाते हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ. ये मेरा अपना तजुर्बा है पूरी दुनिया में काम करके कि जिस कंट्रीज़ ने सब्सिडीज़ दी है उनमें डिस्टॉर्शंस हुए, उसमें वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हुए, और चाहे वो टैक्स एक्सपेंडिचर हो, टैक्स प्रिविलेजेस हो, ये सब नहीं हेल्प करते. हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बनाया है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसको मैं खुद नहीं देखती, बट इट इज़ रियली बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एक्ट ऑफ 2023, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस में बना है.
इन्होंने अभी पूरे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को कोलेट किया है और बेसिकली ये दिस इज़ कवरिंग द पीरियड ऑफ 2019 टू 2022। इसकी क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है व्हाट इज़ द कलेक्टिव लॉसेस ऑफ द स्टेट ओन्ड कंपनीज। मैं कहती हूँ बिटवीन द सब्सिडीज़, किसी किस्म की भी सब्सिडीज़ और स्टेट ओन्ड कंपनीज, इफ़ आई हैड द चॉइस वी वुड प्राइवेटाइज एवरीथिंग, ताकि हुकूमत अपना पैसा एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे लगाए ताकि इस मुल्क की तरक्की हो। तो दैट्स द विजन विथ विच आई हैव बीन लीडिंग, आई एम ट्राइंग टू लीड द strategy part of this government. Ministry of Finance is the heart and soul of all governments, and इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी न सिर्फ फाइनेंस डिवीज़न, रेवेन्यू और इकोनॉमिक अफेयर्स की जिम्मेदारी है, बट ऑल द इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज़, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, वो सारी प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट करते हैं, एक्निक की भी डेलीगेट करते हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमने इतने अच्छे काम किए हैं, अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, अपनी हुकूमत की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह स्पीड से ईसीसी में हमने समरीज लेके जल्दी जल्दी अप्रूवल्स किए हैं। इसमें हमने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है बाय द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओई। सो एक तो कैबिनेट की बहुत सारी कमेटीज़ हैं, एक कमेटी स्टेट ओन ओनरशिप की है और एक कमेटी आपको पता है प्राइवेटाइजेशन की है, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स के लिए भी है। और इस एसओई ओनरशिप में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं। वी हैव टू मेक श्योर कि जो एसओईज़ हैं उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाई क्वालिटी की हो, तो इस पे काफ़ी काम हुआ है। जिस तरह पहले मैंने कहा कि पहली हमारी प्रायोरिटी थी टू मैनेज द एक्सचेंज रेट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम आपको बताएं कि ये नहीं हो सकता था जब तक कि क्रैक डाउन ना होता ऑफ दोज हु हैव बीन प्लेइंग विद द करेंसी ऑफ पाकिस्तान। तो आपको ख़ुद पता है क्या बुरे हालात थे हमारे एक्सचेंज रेट के, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स इन अ गुड शेप। आई मीन आई कैन गो ऑन, बट एक रीसेंट इनिशिएटिव जो मैंने उसका MOU साइन किया था सितंबर अक्टूबर के दौरान इज़ द डिजिटल स्टैक। ये सारी फ्रंटियर की चीज़ें हम लेकर आए, ये पुराने तर्ज से हम नहीं चल रहे इस हुकूमत में, और डिजिटल स्टैक में जो हम काम कर रहे हैं उससे डिजिटाइजेशन विल ग्रो फिनोमिनली। इसकी लॉन्चिंग भी वेरी रिसेंटली हुई थी, एंड वन कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट इसमें बेसिकली हमें बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने हमारे साथ MOU साइन किया था फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, और MOU में उसके स्कोप में था कि वी विल एनविजन एंड वी विल डिज़ाइन पार्क डिजिटल स्टैक। दैट स्टैक इज़ कलेक्शन ऑफ databases and communication protocols which enable these databases to communicate and leverage information for bringing ease and convenience to the lives of common man. Nadra, digital ID and RAST from the banking system, जिसको micro payment gateway system कहते हैं, which has taken over वो real gross payment settlement system जिसमें मुश्किलात होती थी, अब ये smaller customers के लिए माइक्रो पेमेंट गेटवे सिस्टम, ये सारे काम सिर्फ एक एजेंसी ने करवाए हैं, करंदाज ने। एक स्टेट बैंक में हो रहा है, एक अक्रॉस द कंट्री होगा। ये फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं, नादरा का डिजिटल ID एंड रास्त जो स्टेट बैंक ऑपरेट अप करता है, दे आर द फाउंडेशनल ब्लॉक्स ऑफ द स्टैक। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में ये ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गया है।